नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा देगा। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, welcome to all of you for the beginning of a new chapter, chapter 6. तो as usual, जैसे कि हमेशा की तरह हम करते आए हैं, before we begin the chapter, we do a session on the overview of the entire chapter, on what is the breakup of the chapter and what is the flow of the chapter. तो कोई भी अध्याय प्रारंभ करने से पहले की तरह हम एक अवलोकन का सेशन रखते हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे इस अध्याय का फ्लो है, कैसे एक लॉजिकल फ्लो भगवान कृष्णा अर्जुन को एक्सप्लेन करते हुए लेके आते हैं। सो चैप्टर 5 हमने कंप्लीट किया, कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। उससे पहले था चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। उससे पहले चैप्टर था कर्म योगा। सो चैप्टर 3 में कर्म योगा का इंट्रोडक्शन हमें मिला, चैप्टर 4 में दिव्य ज्ञान का इंट्रोडक्शन हमें मिला, चैप्टर 5 में चैप्टर 3 प्लस चैप्टर 4 को ज्ञान को और कार्य को सम्मिश्रित करते हुए दिव्य ज्ञान के स्तर पे कैसे कर्म योगा को हम कर सकते हैं, ये हमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया। उसमें संक्षिप्त में बताया, in a very summary description, Krishna described to us about various types of yogas and he concluded that the best yoga is bhakti yoga. तो conclusion में हमें ये मिला कि the last shloka told us the peace formula, which simply means acknowledging that Krishna is the supreme Lord, the master of all the worlds and every living being and everything that exists. He is the enjoyer of all the tapas and yagnas that we do, and he is the dearmost friend of every living entity without any exception. So that is the foundation of Bhakti Yoga. Bhakti Yoga stands with the knowledge of these three things. That is the last श्लोका में जो दिया गया है, उसको जानना भक्ति योगा का फाउंडेशन है। So now we move to chapter 6. Chapter 6 is Prabhupada, if we notice, all his chapters, he gave nomenclatures in English, a little Hindi and English. But for chapter 6, he simply called it Sankhya Yoga. Sankhya means analysis, analytical study. So chapter 6 says, Prabhupada calls it Sankhya Yoga. Some places it's called Dhyana Yoga. Although Dhyana Yoga is only a part of what is being covered. So in a very elaborate and descriptive way, Krishna describes all the yogas, and naturally he will in the last sloka again conclude that Bhakti Yoga is the topmost yoga. So chapter 5 और chapter 6 का बीच में connection क्या है? What is the flow that takes us from chapter 5 to chapter 6? So Krishna ends chapter 5 by talking about liberation by meditation on super soul, then liberation by Ashtanga Yoga. So, and then finally he gives us the peace formula which forms the foundation of Bhakti Yoga, moksha, liberation through Bhakti Yoga. So this is how chapter 5 was taken through by Krishna. So and
उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि अष्टांग योगा इज इम्प्रैक्टिकल। जो हम आज योगा जो जानते हैं, अष्टांग योगा, पतंजलि का जो योगा, आसनास, प्राणायाम, सो दिस इज नॉट एन ऑल इन ऑल। पतंजलि का अष्टांग योगा, उसका फाइनल गोल क्या है? व्हाट इज द फाइनल गोल ऑफ अष्टांग योगा? फाइनल गोल इज द लास्ट स्टेज, 8th स्टेज, अष्ट अंग योगा, जिसमें अष्ट अंग है, अष्ट स्तर है, 8 steps are there. The last step is called samadhi. Samadhi is nothing but bhakti yoga. Samadhi means completely getting involved in the thoughts of Krishna, in the service of Krishna, by body, mind and soul. You become completely Krishnaized. So, and Krishna himself in chapter 5 says Ashtanga Yoga is impractical. And Arjuna also says it is impractical for him. वो तो नहीं कर पाएगा, because it requires a lot of other things to be done. So again, I'm telling you that I don't have a very good throat irritation है, तो बीच बीच में पानी के लिए मैं सिप लेता रहूंगा, तो थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, आपको ये फिर से बोल रहा हूँ, झेलना पड़ेगा. So how this chapter 6 is divided? Chapter 6 has 47 shlokas, and this 47 shlokas has a flow, and how Krishna has taken us through the flow. So it is divided into 6 sections. 6 भाग में हम divide कर सकते हैं. तो पहला section है श्लोका नंबर 1 to 4, 6.1 से 6.4. इसमें what does Krishna deal with? Advancing in yoga through detached work. तो पहले continuing with कर्मा योगा, action and Krishna consciousness. तो detached work, कार्य करते हुए, कृष्ण के संतृप्ति के लिए कार्य करते हुए कैसे हम योग में आगे बढ़ सकते हैं, अभिवृद्धि हम पा सकते हैं. In the next 4 shlokas, section 2, भाग 2, 6.5 to 6.9, 6.5 to 6.9, Krishna is talking about the yoga ruda stage of the yoga ladder. So in this particular section, it deals about how practice of yoga can also be done by giving up work. तो पहले कर्म योगा था चैप्टर 3 में, काम करो, फिर दिव्या ज्ञान दिया, फिर काम करो लेकिन कृष्णा को ध्यान रखते हुए काम करो, कृष्णा के लिए काम करो. चैप्टर 6 also starts with कृष्णा को ध्यान में रखते हुए काम करो. Then giving up work means giving up all materialistic work. तो सारे भौतिक जो कार्य हम कर रहे उसको हम मतलब त्याग देना, and completely immersing ourselves in Krishna Bhavanamrut, Krishna consciousness. Then in section 3, which is very elaborate, Krishna takes us through almost 23 shlokas, 6.10, 6.32 tak, 6.10 to 6.32, which forms the core of the chapter, core discussion, not the core of chapter, the core discussion of the chapter. He deals about the further stages in practice of yoga. और क्या-क्या स्तर हैं, what are the different levels of yoga abhyas. इसके बारे में कृष्णा हमें, he will take us through that journey, and Prabhupada through his elaborate purports will explain to us what is not very obvious to us. Section number 4, it's again 4 shlokas, 6.33, 6.36, 6.33 to 6.36. In this, Krishna deals with necessity of controlling the turbulent mind. कैसे मन को हमें निग्रहण में रखना है. अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करना है तो we must keep control of our mind. Very nice shlokas are going to come at that time. This is something that we have to follow diligently in our life, even in Bhakti Yoga. Then
Section number 5, Krishna deals in about 9 slokas, 6.37. I'm not able to get the Hindi word for it. 6.37 to 6.45. So in this 9 shlokas, Krishna talks about अगर कोई योगाभ्यास कर रहा है, कोई भी योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कोई भी इसमें कर रहा है, तो अगर वो अनसक्सेसफुल रहा, वो अगर कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसका मतलब डेस्टिनेशन क्या होगा, उसका मतलब नतीजा क्या होगा, उसका क्या सारे जो उन्होंने अटेम्प्ट्स किया वो फेल हो गया, उसका कोई फल नहीं मिलेगा उसको. इस बारे में कृष्णा in these 9 shlokas he deals the destination of an unsuccessful yogi. And then finally in section number 6, in the last 2 shlokas, 46 and 47, he talks about the topmost yoga and topmost yogi. Who is the topmost yogi and what is the topmost yoga? He concludes the chapter by introducing us to this. So, जैसे कि हमने देखा, कृष्णा is the supreme lord, ऋषिकेश है, जनार्दन है. ऋषिकेश मतलब controller of senses, Janardana, controller of people, and then he is also sitting in the heart of people, Paramatma, अंतर्यामी. सब कुछ वो जानता है, बिना हम कहे. हमें मतलब कुछ व्यक्त करने की जरूरत नहीं है भगवान के समक्ष, उनको सब पता है. But yes, as a matter of devotional exchanges, a devotee talks about his likes, dislikes, his prayers with the Lord. So Krishna is the ultimate plane of selflessness. Sorry, not Krishna. Krishna consciousness is the ultimate plane of selflessness. कैसे हम yesterday I talked about the 2 causes of agitation of mind. So in the overview, we talked about there are only 2 causes of agitation of mind. What was the first cause? We talked about self-centeredness. This is the first cause of agitation of mind. सिर्फ मेरे बारे में सोचना, पूरा दुनिया को मतलब साइड में रखना, to think only about me and my things, I, me, myself always. This is the first cause of agitation of the mind. The second cause of agitation of mind is not following the religious path. धर्म के पथ में ना चलना. जब कोई धर्म के पथ पे चलना बंद कर देता है, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वो अधर्म के पथ पे चल रहा है. और अधर्म के पथ में पहले पहले ऐसे लगेगा कि रास्ता पूरा फूल से बिछाया गया है, इट्स अ बेड ऑफ रोजेस ऐसे लगेगा. लेकिन उस फूल के नीचे जो कांटे हैं, आगे जाते 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 वो मैनिफेस्ट होगा और वो चुभने लगेगा, वो उपद्रव करने लगेगा. वैसे भक्ति योगा में उल्टा है. भक्ति योगा में पहले पहले कांटे दिखेंगे, ऐसे लगेगा कि वो I will not be able to follow this path. But Krishna has given us, Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu has given us for Kali Yuga Jivis such a simple process. Chant Hare Krishna and be happy. हरे कृष्ण महामंत्र को जप करो और हमेशा आनंद में रहो, और आनंद तो बढ़ता जाएगा. So for Bhakti Yoga in Kali Yuga, simplest process, chant Hare Krishna. And Krishna and Prabhupada is telling minimum 16 rounds. अब गौड़िया मठ में जाएंगे तो वहां पे minimum 64 rounds है. Prabhupada is very 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 merciful on us. So how does it work? How is it that for गौड़िया मठ it is 64 rounds? कोई कुछ और है वृंदावन में रहते हैं 108 माला करते हैं, 108 माला जपा करते हैं हर रोज, मतलब लगभग 16-17 घंटे वो जपा करते हैं. एक थे हरिदास ठाकुर जिसको नामाचार्य कहते थे, वो 22 घंटे जपा करते थे. वही मतलब भक्ति योगा का जो सिंपलेस्ट प्रोसेस है 22 घंटे वही करते थे.
2 घंटे वो सोना खाना इसमें बिजी रहते थे, मतलब वरना 22 घंटे वो करते थे। बट हमें अनुकरण नहीं करना है. वी शुड नॉट अटेम्प्ट to do all this. We will never be successful because our mindset is not like that. We are not pure devotees. हम शुद्ध भक्त है नहीं. It's we should acknowledge that. So if you are under the illusion that I have no vices, अगर आपको लगता है मेरे अंदर कोई अवगुण है ही नहीं, तो उससे बड़ा अवगुण और कोई है ही नहीं. To think that you do not have any vices, no vices, is going conclusively proving that you are a novice. मतलब आप आध्यात्मिक जगत में बच्चा भी नहीं हो, ये प्रूव करता है. So but by chanting Hare Krishna mantra, by engaging in devotional service, by reading Bhagavad Gita, by attending Bhagavad Gita sessions, we can slowly get purified by a transcendental process. So there are 2 levels of yoga practice. In chapter 6, we also come to know that yoga practice में 2 स्तर हैं. One is yoga ruksha stage and the second one is yoga rudha stage. तो yoga arudha सबसे टॉप पोजीशन में पहुंच गया. योगा आरूढ़ा. योगा रुक्षा जो पेड़ है, ब्रांचेस है, उस एक एक करके वो क्लाइम करने वाला योगा रुक्षा. So yoga ruksha is the beginner stage. और इसमें निष्काम कर्म योगा प्लस अष्टांग योगा दोनों मतलब इन दोनों का सम्मेलन होके योगा रुक्षा स्टेज प्रारंभ होता है, which is the beginning of 6th chapter, which is the ending of 5th chapter. And yoga rudha stage is the advanced stage, जिसमें अष्टांग योगा रहेगा और फिर उसमें धीरे धीरे हम ध्यान को परिपूर्णता से प्रैक्टिस करना सीखना, ये योगा रूढ़ा स्टेज है. फिर ध्यान किसके ऊपर करना है, ये भी 6ठे चैप्टर में हमें पता चलेगा कि किसके ऊपर ध्यान करना चाहिए. There are many people teach us डॉट के ऊपर ध्यान करो, एक सिंबल के ऊपर ध्यान करो, एंड मेनी अदर उटपटांग चीजें हैं, लेकिन हमें ये सब फॉलो नहीं करना है. किसके ऊपर ध्यान करना है, which makes it yoga, जिससे हम उसको योगा कह सकते हैं, ये हमें जानना अत्यावश्यक है. So as I was speaking, this is what we will be covering in 6th chapter, which will be beginning from the next session. So I was talking about Rishikesha. Rishikesha is the controller of senses. जो हमारे इंद्रिया का नियंत्रण जो करता है, वो स्वरूप ही, वो कृष्णा का एक स्वरूप है, ऋषिकेशा. So objectively, what does it mean? As such, Krishna is the controller. तो one of the simplest meanings is Krishna नियंत्रक है. And subjectively, what does it mean? When we voluntarily surrender to Krishna, तो जब हम कृष्णा के शरण में जाएंगे, ये इसका सब्जेक्टिव मीनिंग है. मतलब ये मेरी तरफ से application of whatever I have learned, application into action. That is, subjectively I take shelter of Rishikesha, who is the controller of my senses. I voluntarily subject myself to the control of the Lord, which by default, who is already the controller. तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो पोजीशन है हमारा, जीवेरा स्वरूपा होय नित्य कृष्णदास. जीव का असली स्वरूप क्या है, नित्य कृष्णदास. तो हमेशा यही हमारा पोजीशन है, हम कृष्णा के दास हैं. हमारा क्या मतलब अस्तित्व है, कृष्णा का, राधा कृष्णा का सेवा करना, गुरु के माध्यम से, गुरु की सेवा करते करते राधा कृष्ण गौर निताय का सेवा करना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है जीवन का, और ये हमारा सांविधानिक स्थिति भी है. So and we also learned so far, and in chapter 6 also we learn what is courage. courage का मतलब क्या है, निर्भय. अभय का मतलब क्या है, तो अभय का मतलब है, it's not necessarily absence of fear. जब हम बोलेंगे अभय, निर्भय, इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी चीज से नहीं डरते.
तो then what does it mean? So it means as an ignorant person or a drunkard can also be fearless. हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए. Fearlessness is not the ultimate goal of भक्ति योगा, क्योंकि भय भक्ति होना चाहिए. अगर गुरु के ऊपर भय और भक्ति मुझे नहीं रहेगा, अगर आपको भय भक्ति नहीं रहेगा तो आप क्लास अटेंड करने की नहीं सोचेंगे. अगर अटेंडेंस का भय नहीं रहेगा, if the clause is not put that if you do not have sufficient attendance, you will not be able to move to the next level. आप स्कूल में गए हो, स्कूल में भी यही फॉर्मूला है, you must have minimum attendance. Why? Because there is a certain amount of discipline that a student has to learn, both in material education and as students of Bhagavad Gita now, all of you also should have this discipline that I must continuously, like a goldsmith, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेते लेते मुझे जाना है. We are not iron smiths. एक मार दो टुकड़ा करने वाले लोग नहीं है. Because we are trying to make jewelries out of ourselves. We are not trying to make some iron pottery of ourselves. We are making jewelries. We are precious jewels. क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं. तो इस ज्वेल को कैसे सही शेप देना, कैसे पॉलिश करना और कैसे इसको एक ज्वेल बनाना, ये भगवत गीता का पाठ पढ़ते पढ़ते, हरे कृष्ण मंत्र करते करते, डिवोशनल सर्विस करते करते हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो करेज इज नॉट नेसेसरीली एब्सेंस ऑफ फियर. क्योंकि एक बेवड़ा जो पी के टल्ली हो गया है, वो भी फियरलेस है, किसी से डरता नहीं है वो. बट दैट इज नॉट द काइंड ऑफ फियरलेसनेस दैट वी आर टॉकिंग ऑफ. क्योंकि जब नशा उतर जाएगा उसका, तो सारे दुनिया का भय उसके अंदर भी आ जाएगा. बट वी आर टॉकिंग ऑफ भया एंड भक्ति, स्टार्टिंग विद भया, फिर धीरे धीरे दैट भया हैज टू गेट कन्वर्टेड इनटू लव. जब हम भय के कारण कुछ करते हैं और धीरे धीरे, लाइक इन एन अरेंज्ड मैरिज, पहले पति पत्नी से डर के या पत्नी पति से डर के चीजें करता है, फिर धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, फिर वो जो भी करते हैं प्यार का आधार पे करते हैं. सो दिस इज अ क्रूड एग्जांपल व्हाट आई हैव गिवन. सो इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आल्सो, इन साधना भक्ति, दिस इज व्हाट वी हैव टू डेवलप. इसलिए हमें वैदिक भक्ति, साधना भक्ति कहा जाता है. somebody asked me, प्रभु साधना भक्ति आप बता रहे हो, तो साधना भक्ति में हाउ कैन यू लाइक प्रैक्टिस लविंग समवन. प्यार तो दिल की मामला है, प्यार स्पॉन्टेनियस चीज होना चाहिए, तो ये प्रैक्टिस किया कैसे जाएगा. तो देशभक्ति किसी को जन्म से नहीं होता है ना. तो स्कूल में हम पाठ पढ़ाते हैं, देश के प्रति आपको भक्ति होना चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए. तो पाठ पढ़ाने से, एक गुरु सिखाने से, तो वो भय के माध्यम से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे जब उसमें समझ आ जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगा, वो भय प्यार के माध्यम में वो देशभक्ति करने लगेगा. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल. सो सिमिलरली, सिंस वी आर नॉट Raganuga Bhaktas, we don't have that feeling for Krishna. Theoretically, we may know everything. Krishna is the Supreme Lord, the Guru is everything. लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है. तो ये प्रेम जागृत हो सकता है. क्यों जागृत हो सकता है? I'll tell you why. क्योंकि ये प्रेम ऑलरेडी हमारे अंदर है. हम कुछ नई चीज नहीं कर रहे हैं. ये प्रेम हमारे अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि हम संवैधानिक स्थिति से क्या थे? भगवान के सेवक थे, गोलोक वासी थे. कुछ अनबन करने के लिए, बिकॉज ऑफ डूइंग समथिंग मिस्chievous, they come into this material world. So what has happened? The love that is spontaneously there for Krishna has now been covered by materialism. माया अपनी जाल बिछा चुकी है. आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका शक्ति. आवरणात्मिका शक्ति मतलब कवर्स अवर नॉलेज, एंड प्रक्षेपात्मिका शक्ति हमें भौतिक चीजों में उलझा देगी, आकर्षित करेगी. ये देखो, ये इतना अच्छा चीज है, ये देखो जगमगाती हुई चीज है, तो हमें कृष्णा से दूर 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 लेके जाएगी.
माया ऐसा क्यों करती है? जेलर का काम है रिफॉर्मेशन, तो माया का काम है आपको पहले पाठ पढ़ाना कि ठीक है, ट्राई टू एंजॉय, फिर आपको पता चलेगा कि विदाउट कृष्णा यू कैन नॉट एंजॉय। आप कृष्णा के अधीन हो, कृष्णा के बिना आप कभी एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये पार्ट जब हम सीख जाते हैं तो माया फिर हमें, शी इज बोथ महामाया एंड योग माया। दुर्गा देवी के माध्यम से वो महामाया बन के हमें भौतिक जगत में 10 हाथों से पकड़ के रखती है। She use all her 10 hands, and with our 2 hands we cannot escape her. Then when slowly under the directions of Guru we start developing our Krishna prema, we start uncovering our Krishna prema which is dormant within us, then Maya takes the form of Yoga Maya and she will facilitate our progress in Krishna consciousness. So that is how she works. So fearlessness for a devotee comes from awareness of presence of God within him. तो एक भक्त निर्भय कैसे है, अभय कैसे है? क्योंकि वो जानता है उसके अंदर परमात्मा है, वो कभी अकेला नहीं है। Never is he alone. Krishna as Paramatma is always with him. And when you chant Hare Krishna mantra, Krishna is in the form of name, he is present in full strength. So in the name, Krishna is present as himself in full strength. There's no difference between Harinama and Hari. There's no difference between Hare Krishna mantra and Krishna. तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र जपा कर रहे, क्या होता है? कृष्णा इज प्रेजेंट देयर। सो भक्त ये जानता है कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जपा कर रहा हूं, मतलब कृष्ण मेरे साथ है, मेरे अंदर वो परमात्मा के रूप में बैठे हैं। तो भाई किस बात की? तो कोई भी शक्ति नहीं है इस लोक में जो आपको मतलब खींच के कोई अपाय में लेके जा सके। When we have this confidence that Krishna is with me, then truly we can actually sense it in our lives, we can feel it in our lives, we can experience it in our lives. So this dwarfs the fear. ये जो समझ है, ये जो ज्ञान है, ये जो भय है, भौतिक भय है, उसको क्षीण कर देता है, उसको मिटा देता है। So greater is our Krishna consciousness, greater is our faith in Krishna, greater is our fearlessness. जितने मात्रा में हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, जितने मात्रा में हमें कृष्णा के ऊपर श्रद्धा है, उतने मात्रा में हम अभय निर्भय हो सकते हैं। और तो that means all the material fear that you have today क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि that much proportion Krishna consciousness is lacking, the minus of it is lacking. जब हम धीरे धीरे अभय निर्भय होते रहेंगे, नॉट अभय मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी करूंगा, मुझे किसी से परवाह नहीं है, नॉट दैट्स नॉट द एटीट्यूड, दैट इज नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। वी आर टॉकिंग ऑफ धर्म के पथ में मैं चलूंगा, किसी से मैं नहीं डरूंगा। और खास तौर पे कलयुग में धर्म के पथ में चलने वाले को डर डर के ही चलना पड़ता है। लेकिन जब केवल धर्म के मार्ग हम लेते हैं, सो पीपल आर डूइंग फिलैंथ्रोपी, दान कर रहे हैं, दक्षिणा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, होमा करा रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे, हरे कृष्ण मंत्र जपा नहीं कर रहे, तो क्या होगा? तो उनके अंदर उस प्रोपोर्शन में भय रहेगा, भौतिक भय कहीं ना कहीं रहेगा। धीरे धीरे जब कृष्ण हमारे जिंदगी में आएंगे हरे कृष्ण मंत्र के थ्रू, then we slowly start becoming fearless. So again I'm telling, fearless doesn't mean that we are careless. Fearlessness doesn't mean that I go searching for a lion and put my hand in its mouth. बार बार ये मैं आपको बता चुका हूँ, शेर को ढूंढ के उसके हाथ में उसके मुंह में हाथ डालना, उसको करेज नहीं बोलते, उसको फूलिशनेस बोलते हैं। पर शेर अगर सामने आ गया तो इंटेलिजेंटली काम करना और बुद्धि से काम लेना, विचलित ना होते हुए, बिना डरे, जितना मात्रा में डरना चाहिए उतना डरेंगे, लेकिन उपाय ढूंढते रहेंगे और
उस सिचुएशन से कैसे हमें बाहर आना है, ये हम जब कोशिश करेंगे भगवान की प्रार्थना करते हुए जब हम करेंगे, so that is called courage. Courage means acknowledging the presence of Lord in your life and doing what you have to do, and knowing that Krishna is with you, and if I do what is right, I don't have to fear about anything. This is courage. So Lord's protection. So the devotees who surrender to the Lord are assured victory. कृष्णा खुद भगवत गीता में बोलते, नमे भक्त्या प्रणश्यति, जो मेरे भक्त है, जो मेरे भक्ति सेवा में लगा है, उसका कभी पतन नहीं होगा, क्योंकि मैं उनका साथ हमेशा हूं. So and then in the last श्लोक of भगवत गीता संजय भी बोलते, जहां जहां कृष्णा है और जहां एक धनुर्धारी अर्जुन है, मतलब where there is a devotee and where there is भगवान, तो क्या है वहां पे तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा. So there is beauty, opulence, there is victory, there is all powerful, all power. It is there when a devotee and a Lord are together and they are doing something. So Krishna is a Lord who is telling us that we must do our duty. Krishna is not telling us that we have to be impractical and give up everything and then sit in a corner and do bhakti. That is not bhakti. Krishna is telling, if you don't light fire, अगर आप चूल्हा नहीं चलाएंगे, वो भक्ति नहीं है. आपको अपना कर्तव्य निभाना है, लेकिन कर्तव्य क्या है ये हमें पता होना चाहिए. Not that I assume what my duties are. So the duties, what are my duties also, I must know through the medium of Shastra, Guru and devotees. We should not assume our duties. And Loka Rudi, सब लोग कर रहे हैं तो यही ड्यूटी है. That is also not right. Especially in Kali Yuga, that is not right at all. So Shastra, Guru, Sadhu, इस रेफरेंस से हमें चलना चाहिए. So Bhagavad Gita introduces Krishna, the Supreme Lord, as the intimate servant of his devotees. तो भगवत गीता के कवर में हम क्या देख रहे हैं? इस कवर में आप क्या देख रहे हैं? कृष्णा है, अर्जुन है. कृष्णा क्या, what is the role Krishna is playing? Krishna is playing the role of a सारथी here. Krishna is becoming a servant of Arjuna. सारथी एक सर्वेंट होता है. तो कृष्णा अपने भक्तों का दास भी बनने के लिए तैयार है. तो दिस इज हाउ कृष्णा शोज हिज लव टुवर्ड्स हिज डिवोटीज. तो आज मैंने आपको एक कोट भेजा था. सो व्हाट वाज दैट quote that I sent? I'll read it for you. It is very relevant to what I'm talking now. श्रद्धया हेलया नाम रटंती. श्रद्धा से या हेलन करते हुए आप नाम जपा कर रहे हो. मम जंतवः, मेरा नाम जपा कर रहे कोई भी जीव, भक्त भी नहीं, कोई भी जीव. तेषाम नाम सदा पार्था, उस व्यक्ति का नाम हे पार्थ में सदा वर्तते हृदये मम, मेरे हृदय में हमेशा उनके नाम जपा करता रहता हूँ. So Krishna is always remembering those devotees who are chanting his holy names. तो जब आप कृष्णा की याद कर रहे हो, हरे कृष्ण मंत्र जपा करते करते, कृष्णा भी आपको याद कर रहा है, कृष्णा भी आपके ऊपर ध्यान कर रहा है. So you see, Krishna is, we are trying to become servants of the Lord. Krishna is ready to become our servants, and always he is coming to the rescue of his devotees and to the service of his devotees. I told you before how in Rajasuya Yagna of युधिष्ठिरा, he took care of the horses. उसको नहलाया, एक शूद्र का काम किया उन्होंने, उसको नहलाया, उनको मतलब साफ किया, उनको चारा चराया, और जो ऋषि मुनियों ने खाया और जो सिटीजन्स ने खाया था पत्तल, वो सारे पत्तल उसने खुद उठाया. ये सेवा किया उन्होंने, और युधिष्ठिर का पैर को उन्होंने धोया. So you see, Krishna is ready to become servant of his own devotees. But ये अपेक्षा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए.
अच्छा तो मैं कृष्ण का दास बनूंगा तो कृष्ण मेरा दास बन जाएगा, तो आई हैव अ जीनी इन माय बॉटल, तो मैं कुछ भी करा सकता हूँ कृष्णा से। यू शुड नेवर डू दैट। सत्यभामा का स्टोरी हमें पता है, जब कृष्णा से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, वो अंधी हो गई थी, और कृष्णा सिर्फ उसके लिए चाहती थी, हमेशा उसके साथ रहे, उनकी सेवा करते रहे, उनसे बात करते रहे। तो देन दैट तुला भारा पास्ट टाइम हैपेंड, रुक्मिणी देवी ने सिखाया कि एक तुलसी को हम भक्ति से कृष्ण को अर्पण करेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता भक्त्या प्रयश्यति, व्हाटएवर डिवोटी ऑफर्स विथ मी ऑफर्स टू मी विथ लव। तो सत्यभामा ने ढेर सारा अपने सारे गहने, अपने सारे भंडार को एक तरफ डाल दिया, और कृष्ण दूसरी तरफ बैठे थे, उसकी तुलना करने की कोशिश कर रही थी, 1 इंच हिला नहीं। फिर रुक्मिणी जी आई, उनको समझ में आया कृष्णा क्या खेल कर रहा है यहाँ पे। तो और नारद और कृष्णा मिलके क्यों सत्यभामा को सता रहे, बिकॉज वो लोक को एक पाठ सिखाना चाहते थे सत्यभामा के थ्रू। सो सत्यभामा इज ऑल्सो प्योर डिवोटी, बट फॉर दिस लीला शी प्लेड दिस role, just like Arjuna is a pure devotee, but for us to listen to Bhagavad Gita, for us to get Bhagavad Gita, he played the role of an ignorant person at the beginning of the battle, because of which Krishna started speaking Bhagavad Gita. So एक दल तुलसी से प्रेम से जब कृष्ण ने स्वीकार किया, तो पूरा जो तुला था, कृष्ण ऊपर चले गए, और जो तुला था मतलब द डिवोशनल सर्विस इज ग्रेटर देन कृष्णा। दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस। भक्ति कृष्ण से भी पावरफुल है, कृष्ण नाम कृष्ण से भी पावरफुल है। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। So thank you very much for joining me today. Some more things that I can cover before our time gets logged off. So Krishna respects our intelligence and our individuality. That's why he says, "Ye yatha mam prapadyante." जैसे आप उसके सरेंडर करते हो, उसी मात्रा में, उसी एंगल से वो आपसे मतलब संपर्क में रहेंगे। If you want him in Shanta Rasa, he is there. If you want him in Dasya Rasa, he is there taking your service. If you want him in Sakya Rasa, he is there, he is your friend. If you want him in Vatsalya Rasa, he is ready to become your child. And if you want him in Madhurya Rasa, तो गोपियों के स्तर तो है ही, तो गोपियां बन के हम उनका माधुर्य लीला में भी भाग ले सकते हैं, मंजरी बन के। So Krishna gives us a chance to serve him the way we want him to serve him, and he will purify us by this methodology. So this is what we will learn in this 6th chapter. So thank you very much for joining me. Tomorrow we will start the 6th chapter, shloka number 1 and onwards. 47 shlokas shall require at least 13-14 classes, or maybe more than that. So Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। कोई प्रश्न है, आप WhatsApp पे प्रश्न पूछ सकते हैं। I'm there available for the next another 15 minutes. You can call me on WhatsApp video call, or you can message, or you can do a voice call, and we can